Namaste and welcome to Pariksha Parv 4.0's last session. It has been a wonderful session this year and we have had a very good mix of speakers from toppers to psychologists to psychiatrists to people who have cleared IPS and IAS from very humble backgrounds. So we have tried to bring everybody who we could have brought to you to make Pariksha a celebration for you. Today, on our last session, we have a very special guest joining us, Dr. Shekhar Seshadri ji. He is a child psychiatrist with over 35 years of experience in the field of child mental health. As former senior professor in the Department of Child and Adolescent Psychiatry, NIMHANS, his work has extended beyond the clinical population to children and childcare institutions or service providers across the country as well as the South Asian region. He also has an initiative, a national initiative called Samvad, which is an integrated resource for child protection, mental health and psychosocial care, supported by the Ministry of Women and Child Development by Government of India. It was conceptualized and initiated by Dr. Shekhar ji. Welcome Dr. Shekhar ji. Thank you. Namaste. Namaste. हमारा सौभाग्य है कि आपसे हम बात कर पा रहे हैं and we are ending the session on a very high note for Pariksha Parv 4.0 because we have you joining us. Thank you so much, sir, for giving us your time. Sir, before we start with the general questions that come in on live shows and generally NCPCR website and exam warriors पे जो लोगों ने पूछा है students ने, I would like you to tell me what made you interested in this field, like maybe your journey, कि आप what made you reach here? संक्षिप्त में अगर कहूँ तो I always wanted to be a doctor and I realized very early in medical education itself कि sometimes the practice of medicine can be quite dehumanizing, where you treat the disease and not the person. तो कभी-कभी हम जब राउंड्स लेते हैं अस्पताल में तो बीमारी का जिक्र होता है, फलाने बीमारी को देखा या मरीज को नहीं जिसको ये बीमारी है. तो मुझे लगा कि मनोशास्त्र जो है वो एक ऐसी स्पेशलिटी है जहां एक व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसकी आशाएं, उसकी परेशानी, उसका उनके सपने, psychiatry is the only specialty that deals with और वहां से बाल और किशोर मनोरोग क्षेत्र में आना तो it was a very logical, children are 40% of the population and I think the understanding of child mental health is not very extensive or in fact child mental health practitioners India में बहुत कम हैं और इस स्पेशलिटी को मजबूत बनाना ताकि भारत के बच्चे जो हैं who are basically future citizens of this country, भविष्य के नागरिक हैं, तो उनकी मानसिकता को समझना, उनके व्यक्तित्व को समझना, वो किस प्रसंग और संदर्भ से आए हैं इसको समझना और मनोसामाजिक दृष्टिकोण से उनकी मदद करना ताकि उनको सांत्वना मिले और उनकी परेशानियां दूर हों और किसी तरह की मानसिक व्यथा या विडंबना जो हो उसका हम स्पष्टीकरण कैसे करें, उसका हम परिहार कैसे करें. सो दिस वाज अ लॉजिकल प्रोसेस. दिव्या, आपने संवाद का जिक्र किया. संवाद एक राष्ट्रीय पहल और एकीकृत संसाधन है बाल संरक्षण, मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक देखभाल के लिए. It is very interesting that you refer to Samvad because I really liked your use of the word examinations as a celebration. Yeah. और ये बात जो है इसमें इतनी गहराई और इतनी शक्ति है इस नजरिए से देखना. तो संवाद के बारे में संक्षिप्त में कहूँ तो we work in 4 verticals: in care and protection, in mental health, in policy and law, and in education. So the role of mental health and psychosocial well-being in the area of education is precisely the context of what Pariksha Parv actually stands for ideologically and philosophically.
तो एक तरह से देखा जाए तो this is the context that I come from. This is the context that Samvad comes from, and we are right now operational in 28 states, supporting children as we emerge from the pandemic as well, and the challenges that the pandemic has posed on the children of this country. Divya? Yeah. Sir, we have some questions for you coming in. नमस्कार सर, जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना फिर से आने वाला है, इस महामारी में भावनात्मक और कोविड तनाव से बच्चे कैसे उभरें? अ पेरेंट, his name is Shyam Baghel. He is asking this question because we often think कि अभी fourth wave आने वाला है, third wave आ रहा है. I think that is why he is framed the question this way. Yeah. धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। देखिए, ये पिछले 2 साल में सिर्फ हमारे साथ नहीं, पूरे दुनिया में जो गुजरी है इस महामारी को लेके, हम अगर पहली लहर को देखें तो पहली लहर में चिंता जो थी वो वृद्ध लोगों के बारे में थी, particularly those who had comorbidity, lung problems, respiratory problems and heart problems and all that. लेकिन दूसरी लहर में कहानी बदल गई। Young people, even those who were vaccinated, 40 years old, 50 years old, we were losing them. And then the whole theme of loss and grief, बच्चों को जो झेलना पड़ा, शोक का तजुर्बा जो है, शोक का अनुभव। फिर आई बात तीसरी लहर की और चौथी लहर की, और टीकाकरण जो है लगभग पूरे भारत में होने लगा। चिल्ड्रन ऑल्सो स्टार्टेड टू गेट वैक्सीनेटेड, और जो भी म्यूटेंट्स जो हैं, डेल्टा था, फिर ओमाइक्रॉन वगैरह, as the virus loses its potency and we develop herd immunity, तो बच्चों के मन में दुविधा और प्रश्न है। ये पहले, दूसरे, तीसरी लहर में ये बदलता गया। पहले लहर में we didn't understand what the extent of the pandemic was. तो एक तरह से तो शुरुआत में ही होती है कि अरे बल्ले बल्ले स्कूल बंद हो गया, मजा करो एंड ऑल दैट। फिर सवाल ये उठता है कि ये कब तक चलेगा, ये बहुत देर चलेगा क्या, ये कब खत्म होगा। फिर सवाल बदल जाते हैं, ये बहुत देर चलेगा ना, खत्म होने की कोई मतलब भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है, पता नहीं क्या होगा। तो बच्चों की अंतर्ध्वनि जो है, तो ये बहुत मुख्य है। संदर्भ और संदर्भ कोविड महामारी का है, अनुभव जो है स्कूल का बंद होना, किसी का कोविड पॉजिटिव होना, अस्पताल में दाखिल होना, ऑक्सीजन की मारामारी, बेड्स नहीं हैं, दादा दादी नाना चाचा किसी की मृत्यु, दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई। तो संदर्भ, अनुभव, फिर अंतर्ध्वनि कब तक चलेगा, हाय तौबा, स्कूल कब खुलेगा, और खास करके जो एग्जिट ईयर्स में, द किड्स हु आर इन द एग्जिट ईयर्स, finishing their 12th, what will happen to our entry into colleges? Are we going to lose time? And how that then gives rise to emotions, and the emotions to behavior. तो ये व्यवहार, भावना, अंतर्ध्वनि, अनुभव और संदर्भ में जो रिश्ता है, कॉन्टेक्स्ट, एक्सपीरियंस, इनर वॉइस, इमोशन एंड बिहेवियर, ये रिश्ता बहुत जरूरी है समझना। अब चूंकि पैंडेमिक से लगभग कुछ हम बाहर आ रहे हैं, एंड स्कूल्स आर स्लोली ओपनिंग, तो बच्चों के मन में, माता पिता के मन में, अभिभावक और अध्यापक के मन में ये प्रश्न उठ रही हैं। द क्वेश्चंस दैट आर अराइजिंग इज रिटर्न टू स्कूल एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। सेकंड, learning gap. But what I want to say, Divya, is though we will focus on the learning gap, we should not create a tension around learning. This is the time to welcome children into the school. स्वागत कीजिए उनका, हर्ष मनाइए कि अरे क्या मजा आया इतने दिनों के बाद मिलने, और एक दूसरे की कहानियां सुनिए। लर्निंग को लेके अगर बहुत ज्यादा आप टेंशन क्रिएट करेंगे तो एडिशनल तनाव पैदा हो जाता है। टू लेट देम ईज इनटू द
चिल्ड्रन आर नेचुरल लर्नर्स, वो लर्निंग गैप अपने आप जो है उसमें दरार जो है, वी विल बिल्ड दैट। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज किस परिस्थिति से ये बच्चे स्कूल वापस आ रहे हैं, फ्रॉम व्हाट सर्कमस्टांसेस आर दे कमिंग बैक, वाज देयर अ लॉस एक्सपीरियंस, आर दे कमिंग फ्रॉम वल्नरेबल फैमिलीज जहां इनकम की लॉस हुई थी, आमदनी की लॉस हुई थी, कुछ आघात हुआ, they face trauma, they face stress. So for the school to recognize which context these children are coming back from, create a space for children to be able to share, disclose and speak. अपनी कहानी उनको बताने दीजिए, आदर के साथ, ध्यान के साथ, अनुकंप और समानुभूति के साथ उस कहानी को सुनिए, उसको वैलिडेट कीजिए, ताकि बच्चों में जो भी तनाव है, जो भी स्ट्रेस है, टेंशन है, उसको जो है बाहर आने का मौका मिले। तो ये एक चौखट है जिसको मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं इस प्रश्न की प्रतिक्रिया के संदर्भ में। दिव्या। थैंक यू सर। श्याम बघेल जी, आई होप आपके सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल गया हो, इतने अच्छे से सर ने विस्तार में समझाया है। सर, अनदर क्वेश्चन वी हैव फ्रॉम विश्वास कुमट. ही इज आस्किंग हाउ वी कैन सिलेक्ट अ काउंसलर फॉर चिल्ड्रन, व्हाट आर द क्राइटेरियाज फॉर अ गुड काउंसलर? इस सवालबाजी इसके हम दो तरीके से उत्तर दे सकते हैं। सत्य तो ये है कि कई लोगों के पास डिग्रियां होती हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वो अच्छे काउंसलर हैं। और कई ऐसे लोग हैं जिनके पास न काउंसलिंग, न सोशल वर्क, न साइकोलॉजी, न मनोशास्त्र की डिग्री है, लेकिन वो बड़े अच्छे काउंसलर्स हैं। तात्पर्य इससे हम क्या निकाल सकते हैं? आदर्श काउंसलर जो है वो कौन है, इसमें एक चीज समझना जरूरी है। आदेश, उपदेश, सलाह और समालोचन में फर्क है। आदेश, ऑर्डर, उपदेश, sermonizing, सलाह, एडवाइस, समालोचन, काउंसलिंग. Counseling is always an interactive process, and a good counselor is one who is basically interested in human stories. A good counselor is first a good listener. कि पहले वो कहानी सुने, जैसे मैंने कहा, ध्यान के साथ, आदर के साथ, अनुकंप के साथ और मदद और सेवा के दृष्टिकोण से। ये नहीं कि ऐसा नहीं, देखिए अक्सर ये होता है, जैसे मैंने बताया अभी, कोई परिस्थिति है, कुछ हुआ, बच्चे पे कुछ बीती, उसके मन में कुछ भावनाएं हैं, some feelings and emotions, and then he has a behavior. There can be two kinds of behaviors. One of withdrawal, being silent, the other of being angry, acting out, disruptive. Now, if you tell a child, why are you sitting so quietly? You should not be like this. That is not the way counseling proceeds. You need to acknowledge, to say that you look a little preoccupied today. Is anything the matter? Allow the child to speak, to say that I'm upset about certain things. So you get to emotions. And then you move backwards towards what the child is thinking. And the child is thinking in a particular manner because the child underwent a certain experience. तो उस अनुभव, उस अंतर्ध्वनि और भावना को मान्यता देना, to respect it, is the principle essentially of counseling. And then the child feels understood and respected. So the idea of a selection of a good counselor, whether it's a school or whether it is a counseling center, is really to look at someone who has the patience to listen to stories, who has the ability to validate and respect the story, the emotion, and the context behind it, and doesn't come from a position of merely advising or instructing, but works with the child to co-create solutions. And what you do by this is you return the agency to the child. तो उस बच्चे को, उस क्लाइंट को ये एहसास और ये विश्वास होता है कि मेरे सोच और मेरे निर्णय जो हैं
उसको भी मान्यता दी जाती है, and it is not as though I am incapable of making decisions and I have only to follow a decision or an instruction that someone else gives. So this co-creation of alternatives to deal with challenges is what the true crux of counseling is all about. Divya? Thank you so much, sir. I think that is why, listening to all this, now I understand why you have named the national initiative Samvad, because you believe a good counselor is somebody who can have a conversation with you. Exactly. और सत्य तो ये भी है दिव्या कि चाहे वो अभिभावक और संतान हो या अध्यापक और छात्र हो, parent child or a teacher student relationship, the unfortunate truth is that adult child relationships are usually constructed on the basis of a culture of instruction, expectation, control and obedience, not on a culture of conversations. आदेश उपदेश और अपेक्षा की संस्कृति, वार्तालाप और चर्चा की संस्कृति नहीं है. तो ये संस्कृति जो है, a culture of conversations, is so important in families and in schools, and that's exactly the point that you're making, Divya. Samvad, that's what it means. Samvad. We'll talk about Samvad in a little bit of detail towards the end of our session. First, let me ask you some more questions. Sir, we all know that now schools are open again. They are reopening, and after COVID lockdown, now children are going to school. What do you think? What can be the major adjustment issues when it comes to mental health that children might be facing? And in this situation, what can the parents and teachers do to help them cope? To understand this, Divya, for teachers and parent system to understand how children will cope with the whole return to school after the COVID pandemic, we need to look at this in two contexts. One of these contexts has very clearly to do with age. Ayu. Let me explain this. देखिए, पैंडेमिक से पहले 1 महीने का शिशु, 6 महीने का शिशु या 1 साल का बच्चा लगभग घर पे ही था. पैंडेमिक के दौरान भी घर पे ही है. ये 14, 16, 18 साल के किशोर और किशोरियां जो हैं, वो अपना रास्ता खोज लेते हैं, चाहे वो मोबाइल फोन पे हो, व्हाट्सएप पे हो या घर से खिसक के निकल जाना वगैरह. Our concern is preschoolers, the 4, 5, 6 years old, because learning is a social experience. और लॉकडाउन की वजह से इनके विकास धारा पे, in the developmental trajectories for the 4, 5 and 6 years olds. And this is where for developmental psychologists and for people in education, it is very critical to look at the 4, 5, 6-year-olds और लॉकडाउन की वजह से जो सोशल इंटरैक्शन, पीयर इंटरैक्शन और जिसको हम रेडीनेस स्किल्स कहते हैं, तैयारी, पहली श्रेणी जाने से पहले जो तैयारी होती है प्री स्कूल में, हैंड फंक्शंस, विकास के 5 क्षेत्र जो हैं, दैहिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, भाषा, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, भावनाओं का विकास, कोग्निटिव डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास, एंड इमोशन डेवलपमेंट, विच इज भावनाओं का विकास. And because social experience was also cut down, hardly any play and social interactions. So see what these young children have lost during the pandemic. Loss of routine, loss of structure, loss of educational opportunities, loss of peer interaction, loss of exposure to social spaces, loss of play. Yeah. दिनचर्या, सीखने के अवसर, सामाजिक स्थल से फेमिलियरिटी और खेल इन्होंने खोया है. तो इसको बेसिकली बिल्डअप करना वुड बी वेरी क्रिटिकल फॉर दिस एज ग्रुप. जहां तक कि ओल्डर एज ग्रुप का प्रश्न है, जैसे मैंने अभी कहा, ये किस घर की परिस्थिति से स्कूल वापस आ रहे हैं. और पैंडेमिक के दौरान जब लॉकडाउन जब हुआ था, स्कूल बंद थे, व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस एट होम? Were they congenial? Was it happy? Were there tensions and pressures? Was there loss of income? Was there a loss of job? Was there an escalation in family conflict, an escalation in domestic violence? तो इसको पहचानना जरूरी है, and this is where
the counseling context of the school. So school counselors become so important in understanding the circumstances that the child came from, and to essentially create a culture of conversations and not get so focused on the learning gap, but to really listen to stories. Let children tell their stories. Let children speak about the questions in their mind. उनके मन में जो भी दुविधा है, जो भी विडंबना है, जो भी परेशानियां हैं, जो भी प्रश्न हैं, उनको निसंकोच पूछने दीजिए। और आप कॉन्वर्सेशंस और वार्तालाप में एंगेज कीजिए। आपको सॉल्यूशन देने की आवश्यकता नहीं है या उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है, केवल सुनने की आवश्यकता है पहले, और उसके बाद सॉल्यूशंस को साथ में, अच्छा ऐसा शायद कोशिश कर सकते हैं, या आपने जो कहा ये बड़ा इफेक्टिव मुझे लगता है, why don't we try this out and you come in, let's meet again 2 days from now, 1 week from now, and figure out how it worked out for you. That it is this kind of style that gives a certain lightness and a sense of reassurance to children. सांत्वना मिलती है, दिलासा मिलता है कि टीचर कितने अच्छे तरीके से मेरी बात को सुन रहे हैं, और हम लोग साथ मिलके सुझाव ढूंढते हैं। ऐसा नहीं कि कोई सुझाव मेरे ऊपर थोपा जा रहा है, it's not like that. So this is the way in which the education system needs to deal with the whole context of children returning to schools. Divya? Sir, the difference that the children are going to face is they usually, in a normal non-COVID era, you spend most time in school, most time playing, and very less time with parents. But during this lockdown, they were forced to spend a lot of time with parents. तो ऑब्वियसली देयर वाज दिस होल मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव कि एक दूसरे को जानने का मौका मिला, नेगेटिव मे बी कि यू माइट नॉट लाइक स्पेंडिंग सो मच टाइम विद द अदर पर्सन एंड देयर वर अ लॉट ऑफ फाइट्स और एंगर इश्यूज और समथिंग लाइक दैट यू सी इन चिल्ड्रन, and parents had to cope with the whole thing of learning how to use online education. Teachers also had to cope with how to learn online education. तो अब आपको क्या लगता है, ये एग्जामिनेशन हो या ऑनलाइन एजुकेशन हो, लोग मतलब देयर विल बी अ गैप कि सम पीपल माइट प्रेफर अरे वही सही था और सम पीपल विल बी हैप्पी? इज देयर गोइंग टू बी लाइक एक ना कंफ्यूजन टाइप की व्हाट्स गुड? इस विषय को दिव्या हम दो दृष्टिकोण से देखते हैं। एक बड़ी जनरल सी बात है और एक बहुत ही स्पष्ट बात है। जनरल बात यह है कि एज यू पॉइंटेड आउट कि व्यक्तिगत तौर से ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस इन अ गिवन फैमिली शायद कुछ परेशानियां हुई होंगी, या अच्छा ही रहा होगा कि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। सब लोग जो हैं, चाहे वो छात्र हों, बच्चे हों, अभिभावक हों, माता पिता हों, सब न्यू नॉर्मल से जूझ रहे हैं। एवरीबडी इज डीलिंग विद द न्यू नॉर्मल। ऑनलाइन द डिजिटल वर्ल्ड हैज बिकम does that mean that parenting has got different? Has it got better? Has it got compromised? ये सब research के मुद्दे हैं. We cannot make any assumptions that certainly the school system and the parent system have had to deal with the whole shift to the online education mode. We have had to learn new skills. तो नई क्षमताओं को सीखना, उसको अपनाना, एंड और इसमें चुनौती ये है दिव्या, लर्निंग इज अ सोशल एक्सपीरियंस। ऑनलाइन एजुकेशन पैंडेमिक से पहले भी मौजूद था, इट एग्जिस्टेड इवन बिफोर द पैंडेमिक। यू जस्ट नीड टू बी स्मार्ट ऑफ हाउ टू यूटिलाइज इट एंड ब्रिंग इन द सोशल एलिमेंट इनटू इट। सब कुछ ऑनलाइन ही करना होता तो फिर स्कूल्स की आवश्यकता क्या है? सत्य तो ये है, अ स्कूल बिल्डिंग नीड नॉट बी अ बिल्डिंग, अ क्लासरूम नीड नॉट बी अ रूम, एंड अ टेक्स्ट बुक नीड नॉट बी अ बुक। सीखने के और भी बहुत सृजनशील और क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव तरीके हैं। So it's a question of how we use the online medium and the digital medium to be more creative and create a social connect. As you and I are trying to do, Divya, even इस सत्र में भी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम as evocative बनाएं that. तो ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि
children and families are not an amorphous mass कि सब लोग एक जैसे हैं, that बच्चों में परिवार में एक हद तक समानता है, but every child is unique and every family is terms of both their strengths and their limitations. Therefore, it is important to understand some general patterns, but it is also important to understand कि उस कक्षा में 40 छात्र जो हैं, हर छात्र उसमें एक यूनिक और अनोखा संदर्भ से आता या आती है, और उसको समझना बहुत जरूरी है. So the extent to which a teacher is able to understand the uniqueness of this child versus this child, this family versus this family, and factor that into the kind of interactions that you have, so that the child feels understood, and feels reassured that the teacher is sensitive to the kind of uniqueness that I come from. तो ये एक चीज जो है, इसको ध्यान में रखना जरूरी है, दिव्या. ट्रू सर, जैसे कि आपने कहा कि ऑनलाइन चीज़ें लोग पहले भी थी, और अब इसमें हमें स्मार्ट तरीके से कैसे अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ये सीखना पड़ेगा. नाउ द फ्लिप साइड ऑफ इट इज़ ऑल्सो दैट मोबाइल एंड स्क्रीन एडिक्शन हैज़ इंक्रीज्ड इन चिल्ड्रन and it's a major concern for the parents. So can you give us some of your expert opinion on how to tackle this, because ये हो जाता है. तो इसमें आप अगर प्रोफेशनल एसोसिएशंस को देखें, जैसे द इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स या द इंडियन एसोसिएशन ऑफ चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ, तो इनकी तरफ से कुछ गाइडलाइंस और डायरेक्टिव्स आई हैं. तो इसका मैं जिक्र करना चाहता हूं. पहली बात तो ये है कि प्री स्कूलर्स जो हैं, ये 3, 4, 5 साल के बच्चे जो हैं, जिनकी आयु 3, 4 साल 5 साल है, total screen time for them should be about 90 to 120 minutes in a given day. Okay. And that too not continuously. Okay. In 4 or 5 Sporadic episodes of about 15 to 20 minutes, or beach mein you need to interact with them to provide social experience. जो 7, 8, 9 साल के बच्चे हैं, उनके लिए 3 to 4 years of screen time, which means online education plus whatever, दोस्तों से बात करना, entertainment जो भी है. 14, 15, 16 साल के लिए you can go to 6, 7 hours. So this is a kind of recommendation. अब सवाल ये उठता है कि कोई अभिभावक आपसे आके ये कहेगा कि मेरा बेटा तो 18 घंटे ऑनलाइन गेमिंग पे लगा हुआ है, या 18 घंटे वो कुछ तो व्हाट्सएप पे. सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट देयर इज समथिंग नोन एज बिहेवियरल एडिक्शन. तो इसमें इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर, टेक्सटिंग, बार बार ईमेल चेक करना, पोर्नोग्राफी, ये सब come under the whole framework of behavioral addiction. Now this needs some kind of a expert assessment. तो इसमें हम 2 चीजें करते हैं. एक तो we call it as a family agreement. It's a family plan. We also say that we are not saying कि आप ऑनलाइन मत जाइए या आप मोबाइल फोन पे मत रहिए. लेट्स हैव अ फैमिली प्लान कि एक दिन में कितना समय आप घर की जिम्मेदारियों पे बिता सकते हैं, कितना समय कुछ एंटरटेनमेंट के लिए, कितना समय फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, इट कुड बी हॉबीज, इट कुड बी म्यूजिक, कितना समय यार दोस्तों के साथ गपशप करना, एंड हाउ मच ऑफ टाइम ऑन एजुकेशन. सो यू रीच अ फैमिली प्लान दैट, एंड देन द फैमिली कम्स बैक एंड सेज लेकिन डॉक्टर साहब अभी भी 14 घंटे फोन पे ही है. तो हम कहते हैं कम से कम 18 घंटे से 14 घंटे तो हुआ, ये भी इंप्रूवमेंट है. सो इंप्रूवमेंट डज नॉट हैपन ड्रामेटिकली, इट्स अ प्रोसेस ऑफ चेंज दैट टेक्स प्लेस. दैट सो फैमिली प्लान इज नेसेसरी. It is also important for families to understand how much of time are the parents themselves spending on gadgets. Now they may say that वर्क फ्रॉम होम शुरू हो चुका है, तो हमारे लिए आवश्यक है
कि हम अपने लैपटॉप पे या हम अपने मोबाइल फोन पे काम करते रहे। बात यह है दिव्या कि दिन में आप बिना गैजेट्स के, चाहे वो 15-20 मिनट भी हो, अपने संतान के साथ कुछ गपशप करना या कुछ गेम खेलना या घर की कुछ जिम्मेदारी साथ निभाना, ये करें तो एक तरह से अनुभव बैलेंस हो जाता है। that you have a sense of family time, of we time, साथ जो है समय बिताना। और जैसा मैंने कहा, ये 15-20 मिनट का भी हो, it provides both a break as well as continuity, as well as an experience of non-gadget related social time and family time together. So this is the kind of suggestion that we usually give in the context of this challenge that one is facing as we emerge from the pandemic. Divya? True. Sir, we have noticed that we live in a culture of be productive. Parents are expecting too much from their children sometimes. So, how can they deal with their unrealistic, the children deal with the unrealistic expectations and guilt that I couldn't do what my dad or my mom asked me to do? They often have this feeling of I'm not good enough. वो हो जाता है. इसका परीक्षा पर्व से बहुत ही गहरा संबंध है. The whole issue of and the philosophy and the ideology of the word parv, of celebration, of festivity, and its link with expectation. जैसा मैंने कहा, माता पिता का संबंध अपने संतान के साथ, the relationship of parents with children, if it is based solely on the premise of expectations, we need to realize that children are not business investments. कि आपने इन्वेस्ट किया इस उम्मीद के साथ कि when you are old and infirm that they will take care of you, that children are individuals in their own right. Therefore, I'd like to quote from a newspaper middle that I had written once, where I said, "Rejoice, it is examination time." Funny, isn't it? No one ever thought of examinations as a joyous experience. There's always a sense of doom, disaster, and finality around it, whereas examinations should actually be a celebration of learning. तो हर्ष मनाओ, परीक्षा आ गया. कभी ऐसा नहीं होता कि हाय तौबा परीक्षा, नंबर आएंगे कि नहीं, नंबर नहीं आया तो क्या होगा, पापा डांटेंगे क्या, मम्मी उदास होगी क्या. लेकिन परीक्षा जो है ये एक पर्व होना चाहिए. इसमें एक खुशी, हर्ष आवश्यक है. तो मेरा एक यार है दिव्या, वो 6 स्कूल के कांग्लोमरेशन का डायरेक्टर था. तो उससे मैंने एक बार कहा कि यार, एक मैदान को भाड़े पे लेके, हायर अ फील्ड, व्हाई डोंट यू सेट अप एग्जामिनेशन फेस्टिवल, और उसमें पंडाल वंडाल लगा दो, और जैसे स्टूडेंट्स अंदर घुसते हैं, 2 टीचर्स को वहां रखो जो उस पे रोज वाटर फेंकेंगे, और फिर यहाँ स्टॉल लगी होंगी, मैथमेटिक्स स्टॉल, गणित का स्टॉल, ज्योग्राफी स्टॉल, भूगोल का स्टॉल, बिल्कुल ओपन बुक है. और इस तरीके से कन्वर्ट एग्जामिनेशंस into a celebration of learning. That and the reason for this, Divya, is because the focus is always on outcome, result, and performance, and not on process and effort. परिणाम पे ध्यान है, प्रक्रिया पे नहीं. तो किसी पेरेंट को अपने संतान से ये कहना कि मुझे मालूम है कि नंबर नहीं आए, मुझे मालूम है कि श्रेणी या रैंक नहीं आया, लेकिन मुझे बिल्कुल यकीन है कि तुमने ईमानदारी से पढ़ी है, और मुझे यकीन है कि आप समझ चुके हैं, मेरे लिए ये बस है. Sincerity and integrity. I'm not really concerned about your rank and your numbers. I know that you studied seriously and sincerely, and that you've understood. And your teachers also feel that, and that's enough for me. But nobody says that, because you always feel that. Uh, Similarly, for teachers also to recognize that your feedback to parents
should not necessarily be about percentages and ranks. It should also be कि अंग्रेजी में इतना आया, गणित में इतना आया, लेकिन आपका लड़का जो है, आपकी लड़की जो है, क्या बढ़िया गाती है, कितनी बढ़िया ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी है इसमें, कितनी करुणा है इसमें, छोटे बच्चों को इतने अच्छी तरीके से देखती है, that so a child is not equal to a student, because if a child is equal to a student, then a good student is equal to a good child, and a not so good student is equal to, you see what I mean? Yeah. तो एक बच्चे या छात्र की परिभाषा जो है, a child is equal to a daughter, a son, brother, sister, grandchild, niece, nephew, Indian, Delhiite, Marathi, vegetarian, dancer, nature lover, and a student. So studenthood is one aspect of the child's identity, not its entirety. तो इस चीज को हम पहचाने तो स्कूल और एजुकेशन अपने जगह, परीक्षा अपने जगह, तो the school becomes a place of safety, security, of learning, of connection, of support, of affirmation. और परीक्षा जो है वो पर्व बन जाता है, हवा बन के माथे पे बैठा नहीं रहता है, पर्व बन जाता है. तो ये एक तरीका है इसको अप्रोच करने का. दिव्या है सर, आपकी दो बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही है. बाकी सारी अच्छी बातों के बीच में ये जो दो हैं, मेनली जो आपने एक इमेजिनेशन हमें बताया कि हम कह रहे हैं परीक्षा पर्व 4.0 है ये, बट आपने एक इमेजिनेशन विजुअली हमें बताया कि जैसे पंडाल है, वहाँ पे ये स्टॉल लगा है, वो स्टॉल लगा है, तो तुम उसको इमेजिन कर पाओगे पर्व की तरह. और ये सही बात है कि लोग सोचते नहीं हैं इसको सेलिब्रेट करना, बट आई होप हमारे इतने सारे जो सेशंस हुए हैं एंड विथ योर एक्सप्लेनेशन टुडे विजुअली, students will be able to think of it as a joyous occasion. And another thing that I really liked was the balance between virtual and social that you said, कि virtual world के बीच में थोड़ा सा social element, थोड़ा सा real life element, बिल्कुल, so that the balance is there. Otherwise emotional connect or emotional quotient laptop के साथ या phone के साथ, it's really not possible. बिल्कुल सही बताया आपने. हाँ जी सर. Many parents have learned that healthy coping skills, while others are they have learned the healthy coping skills while others are finding it difficult to cope with the changes after the COVID-19 pandemic. What kind of practical strategies can parents adopt for their well-being? जैसे कुछ लोग कोप नहीं कर पा रहे हैं ये अपग्रेडेशन ऑफ थिंग्स से, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा. दिव्या, कोपिंग जो है इसका रेजिलियंस जिसको हम कहते हैं इन साइकोलॉजी, नो, रेजिलियंस इज अ सुपर ऑर्डिनेट कॉन्स्ट्रक्ट. इसका मतलब ये है कि एक चुनौती है, एक चैलेंज है, एंड यू अडेप्ट टू इट, दैट इज कॉल्ड रेजिलियंस. सो पॉजिटिव अडेप्टेशन टू अ चैलेंज इज कॉल्ड रेजिलियंस, सहनशीलता. तो नाउ people have different styles of coping. For some it is solution focused, for some it is emotion focused. तो कोई चुनौती है, कोई परिस्थिति है, there is a challenge, there is a stress. Now how do you process that stress? It depends on a lot of issues. That the social supports, that if you have an open communication with your parents, or an open communication with someone in your family circle, or with a particular teacher, you have a sense कि मेरे जिंदगी में, मेरे जीवन में केवल एक नहीं, दो तीन ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ मैं निसंकोच अपनी परेशानी और अपनी विडंबना के बारे में बात कर सकता हूँ. That I can unhesitatingly speak to mom or mama or Divya teacher. I can unhesitatingly speak that with the confidence that I will be heard, with sensitivity, with respect, with attention, and with helpfulness, and with empathy. So social supports is a big thing. The second is, it comes back to the whole purpose of education. शिक्षा का उद्देश्य क्या है?
numeracy, literacy, career, livelihood. All this is correct. I have no problems with it. But actually, the true purpose of education is the development of an egalitarian personhood, एक समान अधिकारी व्यक्तित्व का विकास, the development of a socially responsive and responsible citizenry, nagrikta, and the development of an identity imbued with aesthetic sensibility, kala, prakriti, rangmanch, sangeet, ब्रह्मांड. तो इसमें क्या होता है कि अगर पाठशालाओं में सब्जेक्ट्स के अलावा जीवन कौशल्य, लाइफ स्किल्स, और जीवन कौशल्य अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO, उन्होंने कहा है कि जीवन कौशल्य जो है वो 10 जीवन कौशल्य हैं. डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्याओं का समाधान, क्रिएटिव थिंकिंग, कलात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, विश्लेषण, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, रिश्ते, कम्युनिकेशन, वार्तालाप, कोपिंग विद स्ट्रेस, तनाव को झेलना, कोपिंग विद इमोशंस, भावनाओं को समझना, एम्पथी, समानुभूति. तो इस और ये लाइफ स्किल्स जो हैं, they operate in different contexts. Decision making in career choice, decision making in peer pressure, decision making in a relationship conflict. और ये रिश्ता जो है जीवन कौशल्य का संदर्भ के साथ, इसका ट्रायंगुलेशन जो है, you complete with the style of teaching, जिसको हम pedagogy कहते हैं. और pedagogy 2 टाइप की होती हैं. Didactic, यह है आदेश उपदेश. दूसरा होता है एक्सपीरियंशियल, विथ रोल प्लेस. सिनेमा का क्लिप्स देखा, फिर उसका विश्लेषण किया, यहां क्या हो रहा है, इन्होंने ऐसा क्यों सोचा, इन्होंने ऐसा क्यों कहा, और किस तरीके से ये कह सकते थे, आपके साथ आगे जिंदगी में ऐसा हो तो आप कैसे डील करेंगे. तो इस तरीके से दे लर्न मेथड्स ऑफ कोपिंग इन लाइफ, वेदर इट इज इन अ सोशल सिचुएशन or a personal situation or an interpersonal situation. तो किसी संदर्भ में कोई भी चुनौती हो, आप बाहर कहीं जा रहे हैं, दुकानदार आपके साथ ठीक से बात नहीं कर रहा है, कुछ कहा सुनी हो गई, या मम्मी पापा के साथ कुछ अनबन हो गई, या आपका कोई यार दोस्त है या किसी के साथ आपका रोमांस चल रहा है और वहां कुछ बड़ी गहरी बात हो गई, या कोई आप पे दबाव डाल रहा है कि चल ऐसा कुछ कर ले और आप करना नहीं चाहते, तो हाउ डू यू वर्क with these kind of situations. तो इसको हम लाइफ स्किल्स एजुकेशन कहते हैं. और संवाद हमारा पहल जो है, इसमें हमारे पास काफी मटेरियल्स हैं. तो संवाद निम्हांस जो यूट्यूब चैनल है, मंत्रालय के द्वारा हम जो चला रहे हैं, और निम्हांस चाइल्ड प्रोटेक्ट.in जो हमारा वेबसाइट है, तो ये पब्लिक डोमेन फ्री एक्सेस वेबसाइट है दिव्या, क्योंकि हम लोग कॉपीराइट में बिलीव नहीं करते हैं, हम लोग कॉपी लेफ्ट में बिलीव करते हैं. इस्तेमाल कीजिए, और इसमें स्कूल्स के लिए, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए काफी मटेरियल है लाइफ स्किल्स में, आयु अनुसार 0 से 6 सब, 7 से 12, और फिर 13 से 18, जेंडर को लेके, लैंगिकता को लेके, कामुकता को लेके, हाई रिस्क बिहेवियर्स को लेके, परीक्षा को लेके, शोक को लेके, तनाव को लेके, अलग अलग मुद्दों को लेके हम जीवन कौशल्य के सरल तरीके से बच्चों के साथ कैसे हम बातचीत कर सकते हैं, कैसे एक्टिविटीज कर सकते हैं, जिससे इनकी कोपिंग स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हो सके. ये सब इस यूट्यूब चैनल में संवाद निम्हांस, और हमारा वेबसाइट जो है निम्हांस चाइल्ड प्रोटेक्ट.in इसमें मौजूद है. प्लीज डू हैव अ लुक एट इट and you will be really helped by all the material that is present here, and please use it, adapt it, send it on to anyone who wishes to use it. Divya, over to you. So like sir said कि आप please संवाद में जाइए, और it's a platform to ask all your questions and get all your answers, just like you've been asking here. Sir, one of the live questions are, as we've seen that children become very frustrated and short-tempered sitting at home during exams, it usually happens.
How should parents deal with the behavior change in children, especially during the pandemic and examination combination when it happens? Vasisht Vaidya is asking this question. या वशिष्ठ, मेरी प्रतिक्रिया इसके लिए ये है, आपको फिर मैं याद दिलाना चाहता हूँ, फ्रस्ट्रेटेड इरिटेटेड जो है ये एक भावना है, इमोशन है. आपको याद होगा मैंने कहा था संदर्भ, अनुभव, अंतर्ध्वनि, भावना और व्यवहार. कॉन्टेक्स्ट, एक्सपीरियंस, इनर वॉइस, इमोशन, बिहेवियर. फ्रस्ट्रेशन एंड इरिटेशन इज द इमोशन. व्हाट इज द इनर वॉइस? अब संदर्भ यह है, कोविड था, स्कूल्स बंद थी, गैप ईयर हो सकता है कि नहीं, तनाव बढ़ा. एक्सपीरियंस, एग्जाम आने वाली है, टेंशन. इनर वॉइस, मैं को झेल नहीं पा रहा हूं, मैं सामर्थ्य नहीं हूं, पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं. इससे इमोशन क्या होगा? उदासी, फ्रस्ट्रेशन. अगर इनर वॉइस ये है कि क्या बकवास है यार, स्कूल वाले समझते नहीं मेरी बात, और घर में इतनी जिम्मेदारी है मेरी, ये करो वो करो मुझसे बोलते रहते हैं और साथ में पढ़ना भी है. इमोशन, इरिटेशन. और व्यवहार क्या होगा? या तो चीखना, चिल्लाना, रूठ जाना, इस तरीके से. तो बहुत जरूरी है कि आप बच्चों की अंतर्ध्वनि को समझिए और उसको मान्यता, मुख्यता दीजिए. इफ यू वैलिडेट देयर इमोशंस टू से आई अंडरस्टैंड, इट इज लॉजिकल and understandable to feel this, that but we are here to support you. तो इसमें फिर कैसे टाइम मैनेजमेंट का मामला आ जाता है. मामला ये भी आ जाता है कि आप अपनी तरफ से उन पे दबाव न डालें कि देखो जो भी हो, पैंडेमिक का बहाना लेके, भैया देखिए पैंडेमिक का प्रभाव तो सब पे पड़ा है ना, तो तुम क्यों पैंडेमिक को लेके ये कह रहे हो कि नहीं होगा. तो इस तरीके से आप करें तो आप उनकी भावनाओं का निरादर कर रहे हैं. you're devalid sort of, you're not validating what they are going through, that. But to say yes, it is understandable. So why don't we do one thing? Don't get too tense about. Let's do some time management so that you also have time to relax and recharge your batteries, so that when you get back to reading, you get back to it with a better frame of mind. And a more receptive frame of mind. So the child feels both relaxed as well as validated, and the frustration and irritation goes away. Also, the pressure of expectation and the pressure of achievement is taken away, to say everybody is in the same boat and everybody is struggling with this issue. We are here to support you. If things get unmanageable, help is available, and we will find someone to assist you through the process of how to approach studies, how to do time management. And these become the kind of counseling approaches that we use in a situation. Divya? Yes, sir. So, what can parents do to improve the resilience of their children? We do know that mitigating distress goes a long way in helping children before it deteriorates into mental disorder. तो वो जो period है उसके बीच में how do they recognize it and help? Do not wait for challenges and problems to take place. Even when they have not occurred, create a culture of conversation. And whether it is through examples or through movie clips or through stories, to present the kind of challenges that you anticipate may occur in the future, to say, agar aisa hua, to, how can we deal with it? So that when it actually takes place, they are already prepared. So we call this as preparation for challenges that might occur in future, and which is why in Samvad, Divya, we have a library of films. We use films as a teaching methodology. तो हमारे पास 50-60 फिल्में हैं बच्चों के बारे में, बच्चों के जीवन के बारे में, बच्चों के जीवन में जो तनाव होता है उसके बारे में. तो हम फिल्में देखते हैं और फिर उस पर चर्चा करते हैं. We call it, Divya, as the intent, content, methodology, process, paradigm. Intent, हमारा इरादा क्या है इस फिल्म दिखाने का? टू इंट्रोड्यूस फ्रस्ट्रेशन और एंगर. कंटेंट क्या है उस फिल्म में? वो सीन जो है जिसमें ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर इसने ऐसा बोला, कटाक्ष बोला, फिर इसको गुस्सा आया. सो दैट्स द कंटेंट. द मेथड इज अ फिल्म क्लिप.
द प्रोसेस इज वो देखने के बाद उस पर चर्चा करना, यहाँ क्या हुआ, ये क्या सोच रहा था, क्या इसकी गलतफहमी थी, हाउ एल्स कुड ही हैव डेल्ट विद इट। तो इसको हम इरादा, विषय, तरीका और प्रक्रिया, इंटेंट, कंटेंट, मेथड और प्रोसेस, तो ये तरीका घर पे भी अगर आप अपनाएं तो बड़ा मजा भी आता है और फिर फायदा भी है इसका। इंडिया में तो सर फिल्म्स के ज़रिए काफ़ी एग्जाम्पल्स और रेफरेंसेस दिए जाते हैं। सिंस टाइम इमेमोरियल, रामायण, महाभारत एंड ऑल, वी टेक रेफरेंसेस ऑफ दैट टू अंडरस्टैंड सिचुएशंस, एंड ऑडियो विजुअल इज़ अ वेरी गुड मीडियम, very powerful medium. So that's a very nice process that you're using, prakriya, like you said. Sir, mobile gaming addiction in children has increased, and what is your say on this? Okay, this question we have answered before, but live में दोबारा आया है, so if you can address it again. तो इसके लिए दो चीजें हैं। जैसे मैंने कहा, द इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड द इंडियन एसोसिएशन ऑफ चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ हैव बोथ ब्रॉट आउट गाइडलाइंस। तो ये गाइडलाइंस पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं कि मोबाइल एडिक्शन, स्क्रीन एडिक्शन को आप किस तरीके से डील कर सकते हैं। तो फैमिली प्लान होना जरूरी है। माता पिता खुद किस तरह का उदाहरण सेट करते हैं बच्चों के सामने, वो अपने समय को कैसे व्यतीत करते हैं, समय कैसे गुजारते हैं, उनका रूटीन कैसा है, वो खुद कितना टाइम मोबाइल और गैजेट पे बिताते हैं, ये भी जरूरी है। टू क्रिएट आइलैंड्स ऑफ सोशल इंटरैक्शन, टू यूज मोबाइल टू क्रिएट सोशल इंटरैक्शंस, कि चल बहुत दिन हो गए नानी से बात नहीं हुई, चल नानी को फोन लगाते हैं। अरे बहुत दिन हो गए अमेरिका में चाचा जी जो हैं उनसे बात नहीं हुई, चल फोन लगाते हैं। टू टू क्रिएट सोशल इंटरैक्शंस रादर देन रेपिटेटिव काइंड ऑफ। और बहुत ही सीरियस लेवल पे हो, ये जैसे मैंने कहा 18 घंटे 20-20 घंटे सो नहीं रहे हैं, खा नहीं रहे हैं, और बेचैनी है, गुस्सा है, खौफ है, अगर आप उसको निकालने की कोशिश करें, आपने नेट बंद कर दिया, नेट काट दिया आपने, तो फिर झगड़ा, लड़ाई झगड़ा होता है, मारपीट भी होती है। दिस इज अ सीरियस इश्यू दैट नीड्स टू बी डेल्ट विद बाय अ प्रोफेशनल। दिव्या, ओवर टू यू। सर, आज के बदलते समय में माता पिता की क्या जिम्मेदारियां हैं और वे परीक्षा के दौरान अपने बच्चों की कैसे मदद करें, इज वन ऑफ आवर लास्ट फ्यू क्वेश्चंस फॉर फ्रॉम द लाइव ऑडियंस। माता पिता के साथ दिव्या अक्सर एक दिक्कत ये है, parents fail to re-establish adult relationships with their children when they grow up. People use the term adult child. There's no such thing as an adult child. He is an adult. She is an adult. तो सत्य तो ये है कि आप 50 साल के हो सकते हैं, आप अपनी 25 साल की बेटी की शादी करवा रहे हैं, लेकिन आपके 80 साल के बापू के नजरिए में आप अब भी मूर्ख और इडियट हैं। बच्चे यू हैव टू री एस्टैब्लिश एडल्ट रिलेशनशिप विथ योर चिल्ड्रन। और जहां बच्चों को ये एहसास हो कि आप भी इस परिवार के एक मुख्य सदस्य हैं, और आपकी राय जो है, आपकी सोच जो है, आपका दृष्टिकोण, आपके सपने, आपकी अपेक्षा, उसको आदर दिया जाता है, एंड योर एक्टिव थिंकिंग contributing member of this family and not someone who has to passively follow everything that is given. This is exceedingly important to keep in mind. दूसरी बात जो मैंने कही वो है वार्तालाप की संस्कृति, a culture of conversations. तीसरी है फैमिली टाइम, जिसको हम फैमिली क्वालिटी टाइम कहते हैं पेरेंटिंग में। अक्सर आपका रिश्ता बच्चों के साथ केवल अपेक्षा पे आधारित हो, तो और सत्य तो यह है दिव्या कि किसी व्यक्ति से आप ये पूछे कि भाई बचपन के बारे में क्या याद है आपको, आपको तो वही याद होगा जो बार बार हुआ। एक यादगाश जो है, या हुआ एक बार लेकिन वो इतना अस्मरणीय था, पॉजिटिवली नेगेटिवली थी। तो इसीलिए तो लोग कहते हैं कि पता है मेरे फैमिली में इतना अच्छा माहौल था, हम लोग बातचीत करते थे, एलटीसी के लिए प्लान करते थे, साथ घूमते थे, बड़ा मजा आता था। बजाय ये कि बचपन के बारे में यही याद है कि यार मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते थे ये मम्मी पापा, पता नहीं किस तरह के लोग थे। मुझे मेरा बचपन जो है
मैं बिल्कुल किसी हैप्पीनेस के साथ याद नहीं करता हूँ. हमेशा प्रेशर, हमेशा एक्सपेक्टेशन, और मैं यही सोचता था कि मैं इस परिवार में पैदा क्यों हुआ यार. तो इसीलिए क्रिएट memories of happiness for your children, memories that they can cherish and remember when they are 20, 30 and 40 and 50 to say, वाह, क्या बचपन था. Sir, as you mentioned about re-establishing relationships once the children are adults, what if a child is in his कहते हैं ना आजकल मिड लाइफ नहीं क्वार्टर लाइफ क्राइसिस भी होता है, when you're 24 24 25, तो तुम पढ़ाई भी कर रहे हो इंजीनियरिंग के बाद एमबीए भी कर रहे हो, somewhere you are an adult, somewhere you have some work experience, somewhere you are also a student and dealing with this whole transition from being a student to an adult and being a person on your own. एंड अगर उस वक्त आपके दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि नहीं मेरे बचपन में ना ये हुआ रहता तो शायद मैंने वो कोर्स लिया लेता लाइफ में, वो हुआ रहता तो शायद ये कोर्स लिया लाइफ में, क्योंकि अब तो हो गया है, आप परीक्षाओं से गुजर के बोर्ड से गुजर कर यहाँ तक पहुँचे हो, मास्टर्स भी शायद क्लियर कर लिया है. सो हाउ डज अ स्टूडेंट इन दिस ट्रांजिशन फेज डील विद समथिंग in this phase? How do It would interest you to know that there is something known as transitional psychiatry, and it focuses precisely on the 18 to 25 age group, because it's a very critical very critical age group. And that's where parenting has become a very important issue. और पेरेंटिंग को लेके इतनी सारी इनिशिएटिव्स अभी शुरू हुई हैं, और इट वुड इंटरेस्ट यू टू नो कि 2000 में जब हमने संवाद पहल शुरू किया था, वन ऑफ आवर फर्स्ट प्रोग्राम्स वाज कॉल्ड पेरेंटिंग पाठशाला. तो मैं आप लोग सबसे यही कहूंगा कि संवाद यूट्यूब चैनल में जाके, जो संवाद निम्हांस यूट्यूब चैनल में जाके पेरेंटिंग पाठशाला श्रृंखला जो है उसके 7 या 8 सत्र हैं जिसमें ये मुद्दे काफी, खास करके किशोर अवस्था में या 18, 19, 20 साल की उम्र में किस तरह की चुनौतियां आती हैं पेरेंटिंग में, इसका हमने काफी डिटेल में स्पष्टीकरण किया है. ओवर टू यू दिव्या टू क्लोज द सेशन. So, thank you, sir. Sir, before we close the session, one last question we have. How to stay away from distractions, if someone is asking? Time management. डिस्ट्रैक्शन होने दीजिए ना. डिस्ट्रैक्शन में अपने आप में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर डिस्ट्रैक्शन के लिए हम टाइम रखें तो इतना टाइम हम डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, इतना टाइम हम कुछ भी, इतना टाइम फॉर नो प्लान्ड एक्टिविटी. दैट time management is of essence. That and I think that if a child or a student is given that freedom, because truly learning can occur only in an atmosphere of freedom and joy, not in an atmosphere of restriction. कि don't get distracted, हिलना डुलना नहीं, जैसे 8 घंटे स्कूल पे हैं तो उस कुर्सी से हिलना डुलना नहीं, बिल्कुल आगे देखना. You can't learn like that. True. So it's quite okay that whenever I go to schools, Divya, I want to listen to children's laughter. स्कूल में मैं अगर जाता हूँ ना, मुझे सन्नाटा जो है ना, बड़ा मुझे डर लगता है कि क्या. You want to listen to children's laughter, yeah, which means that they are happy and they are learning that. So time management, including distraction, I think is truly the answer. Over to you. सन्नाटा होने से वो अमिताभ बच्चन का स्कूल याद आ गया, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, एकदम सब शांत है, वैसा हो जाएगा माहौल. थोड़ा फन होना चाहिए. हाँ जी. सर, are there any tele-counseling services where children parents can call if they have mental health issues? Yes, in fact, the National Commission for Protection of Child Rights has itself started an initiative called Samvedana. जरूर उससे संपर्क करें. वैसे और भी कोई बात हो तो चाइल्ड लाइन जो है 1098, वो भी एक टेलीफोन हेल्पलाइन है, ये भी अवेलेबल है. तो इस तरह की कई इनिशिएटिव्स हैं, और these are some of the helplines that are available for you, dear parents. Sir, before we bid a goodbye to our audience, not just for your session, but for Pariksha Parv 4.0, this year's whole session, sir, I would like you to give a message for the viewers with regard to NCPCR's initiative of
having this Pariksha Parv for 1.5, 2 months? दिव्या, परीक्षा पर्व का मैसेज जो है वो सुदर्शन फाकीर के लफ्ज जो हैं, जो मरहूम जगजीत सिंह के आवाज में मैं हमेशा यही कहता हूँ, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी. Let Pariksha Parv be the कागज की कश्ती that we float on the puddles made of the beautiful rain that education should be about. Thank you so much. We are ending Pariksha Parv 4.0 on a very melodious note too. Thank you so much, sir. Audience who are watching us and who have participated in all the sessions that we had from April till the 31st of May, thank you so much for tuning in. This is Divya Singh Sharma thanking you on behalf of all the speakers, on behalf of NCPCR, New India Junction, Doordarshan, and I hope we are able to help you a little bit in making Pariksha a celebration for you all. Thank you so much. This is Divya Singh Sharma signing off for this year's session. Namaskar. Namaskar.